So hello everyone. Today we have to going to start our topic, that is redox reaction. So first I write the redox reaction. To start the redox reaction, we have to know about कि reaction क्या होती है. Reaction के अंदर दो चीज़ों को देखा जाता है, एक arrow से पहले और एक arrow के बाद. So before arrow, if any substance or any compound is present here, that means it is a reactant. What we say, that is the reactant, or the another name is substrate. The compound present before the arrow, that is the reactant. If this reactant is react with another compound and it's form a product, what form? That form the product. So this is the basic definition of the reaction, in which reactants are react to each other and form a compound, that is product. That is the definition of the reaction, we also know that. But what is the meaning of the redox? First of all, we have to discuss about the what is redox. Redox word is formed by the combination of two words. First is reduction and second one is oxidation. First is reduction and another one is oxidation. So whenever both of the reaction or both of the process take place in a single reaction, that reaction is known as redox reaction. अब redox reaction पढ़ने से पहले हमें reduction और oxidation के बारे में पता होना चाहिए. So first of all, we have to discuss about oxidation and reduction. All right. So first is oxidation. And another is reduction. हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है. तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है ऑक्सीडेशन में, कि ऑक्सीडेशन में हमें ध्यान रखना है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. और यहाँ पे रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ओके. अब लॉस कौन करेगा और गेन कौन करेगा, वो बात आती है. तो जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब मैम इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? डोनेट कर सकती है. मेटल के पास में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की किसी और एलिमेंट को, और बाद में वो एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद स्टेबल हो जाता है. जस्ट लाइक आई राइट एग्जाम्पल, that is Na. Na is sodium and it is our alkali metal. So Na have tendency to lose the electron and convert into the Na plus. This procedure is known as oxidation. When we talk about the reduction, in reduction the gaining of the electron, एंड मेन गेन कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को? नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं. जैसे कि हम देखते हैं क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सो क्लोरीन हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द रिडक्शन. So by the combination of oxidation and reduction, if I see here, when we talk about NaCl, sodium chloride, the charge on the Na is positive and the chlorine is negative. Why? Because sodium have tendency to get converted into a stable product after donating a one electron. It's become neon, and we all know that neon is a stable compound because of the noble gas. Same here with chlorine. Chlorine accept one electron and convert into the noble gas, that is argon, and argon is also a stable. So NaCl is formed and the charge on the Na and Cl is on Na plus because it lose the electron, and in chlorine it's gain the electron, so it's on minus charge. Got it? So this is the procedure of oxidation and this is the reduction. Before to start the redox reaction, we know about one more thing, that is oxidation number. Oxidation number.
इट सिंपली रिप्रेजेंट कि चार्ज कौन सा प्रेजेंट है किसी भी स्पीसीज पे। अगर मैं बात करती हूँ, सेम आई टेक द एग्जांपल NaCl, तो Na पे कौन सा चार्ज है मैम +1, Cl पे कौन सा चार्ज है मैम -1, तो Na क्या हो गया यहाँ पे, Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है +1 और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है -1. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर. आई टेक अनदर एग्जांपल दैट इज NaOH. अब हमें Na का तो पता है बट OH का नहीं पता, तो कुछ स्पीसीज होती है उनका चार्ज हमें ध्यान रखना होता है. OH पे होता है -1 चार्ज, दैट इज हाइड्रोक्साइड. SO4 पे होता है -2 चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, और मेनली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they carry -1 charge. So in this Na have +1 charge and OH have -1 charge, and you know that one thing, the addition of both of the charge become 0 equals to 0. This is the reason why they are electrically neutral. ये electrically neutral क्यों होते हैं, क्योंकि इनका एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं. तो ये क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है. अब हम बात ये हमारे टॉपिक पे आते हैं जो कि था रिडॉक्स रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है उनका रिडक्शन भी हो रहा है. सो कैन आई से दैट द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज नॉन एज redox reaction. All right, so the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously known as redox reaction. Known as redox reaction. ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ में रिडक्शन भी हो रहा हो, वो रिएक्शन क्या हो जाती है रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है. तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन क्या होता है. ऑक्सीडेशन क्या होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा हो, लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जस्ट सी हियर, lose of the electron. Or one thing you have to also know about the oxidation in which the oxidation number is increases. See, whenever you talk about a single metal or I can say elementary element. अब elementary element क्या होता है मैम कि जो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है जिसके साथ में कोई और एटम नहीं आ रहा है. यू सी हियर, यहाँ पे कोई और एटम नहीं है इसके साथ में, तो इसके पास चार्ज कितना होगा 0 और इसके पास चार्ज कितना है +1. तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो कंडीशन कौन सी होगी ऑक्सीडेशन. और वेनेवर क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में जा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 तक चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया डिक्रीज हो गया. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे रिडक्शन हुआ है. तो कैसे हम पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है. Whenever oxidation number, I can say oxidation state increase, the process is known as oxidation. And when oxidation state is decrease, the process is known as reduction. So in oxidation, lose of electron. And another thing we have to know about that कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, वो हमारी कौन सी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. और व्हेन वी टॉक अबाउट द रिडक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, वो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाती है रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है. ओके, देन वी मूव ऑन आवर टॉपिक अगेन, that is redox reaction. And in redox reaction, the reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously, that is known as redox reaction. All right, if I take an example just like KMnO4,
So I said कि बेटा you have to find out the oxidation number of Mn. How you find that? So to find the oxidation number of manganese Mn, you have to determine कि हमें पता करना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि मैम वी कंसीडर इट एक्स, हम इसको एक्स मान ले रहे हैं कि इसका क्या है, एक्स मान ले रहे हैं, इसके ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमें के का पता है। अब देखो बेटा कुछ हमें कुछ जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास में हो गया Na, एल्कली मेटल्स, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं Na, के, आरबी, सीजियम, रुबिडियम, इन पे होता है +1 चार्ज। और वेन एवर वी टॉक अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल पे होता है +2 चार्ज, जैसे Mg+2। ओके, अब देखो के जैसे Na पे होता है प्लस, के पे होता है प्लस, आरबी पे होता है प्लस, सीजियम पे होता है प्लस, बिकॉज दीज आर विच मेटल मैम, दीज आर एल्कली मेटल्स। ऑलराइट, तो इस पे हो गया कौन सा चार्ज, +1, तो यहाँ पे +1 लिख दो, ठीक है। मैंने तुम्हें प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन कंटेन -2 चार्ज। ओके, तो सबसे पहले हमें चार्ज लिखना होता है, यहाँ पे वी हैव टू राइट द चार्ज। बट हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4 ऑल्सो। 4 ऑक्सीजन के लिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो नाउ we have to solve this, plus x minus 8 equals to 0. So x equals to 8 minus 1, it's become +7. So the oxidation number of the Mn is +7. Everyone, I think कि ये चीज हमें क्लियर होगी कि Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमने कैसे फाइंड किया है। चलो हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। कैन आई टेक द एग्जांपल ऑफ KCl? That is so simple. So directly in the oxidation number of the K is plus, that is minus. CaOH का whole twice. अब इसके अंदर हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट we have to consider it x and plus, what's the charge on the OH, -1. How many OH are there, 2, just equals to 0. X become +2, the charge on the calcium is plus. All right,